Hello everyone, welcome to our channel Lingualit Capital. In this lecture, we will cover figures of speech that will help to all of you. So, let's start our today's topic. And at first, we will discuss their nature and function. So, a figure of speech that is also called alankar in Hindi is a poetic device which consists in the use of words and phrase in such a manner as to make the meaning more pointed and clear and the language more graphic and vivid. Figures are also called images, for in them one thing is represented in the images of another. According to Ben, it is a form of expression that essentially deviates from the ordinary mode of speech for his sake of more powerful, pleasing or distinctive effect. It is pictorial or poetic language. But it is a mistake to think of figures of speech as simply ornament of language. They are part and parcel of the human language in motions of emotional excitement. When his emotions are stirred, man instinctively tend to express himself through the use of figurative language. That figures are used naturally and instinctively to express powerful feelings is seen in the fact that children and primitive, uncultured people habitually used figures of speech. And figures have been used by poets to decor their language and to make it more vivid and pictorial, to increase its force and effectiveness, and to communicate their meaning more lucidly and clearly. By increasing the beauty of language, the use of figures provides great aesthetic satisfaction to the readers. It means कि अलंकार यानी कि फिगर्स ऑफ स्पीच एक पोएटिक डिवाइस होते हैं जिनमें वर्ड्स एंड फ्रेजेस का यूज़ इस तरह किया जाता है कि इनमें मीनिंग्स और भी ज़्यादा टू द पॉइंट एंड क्लियर हो जाएं और इनकी लैंग्वेज और भी ज़्यादा ग्राफिक एंड विविड लाइक अलाइव हो जाए। पावरफुल एंड इफ़ेक्टिव फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए अलंकारों का नेचुरली एंड इंस्टिंक्टिवली यूज़ किया जाता है और पोइट्स ने अपनी लैंग्वेज को डेकोर करने यानी कि सजाने और उसे और ज़्यादा अलाइव एंड पिक्टोरियल बनाने के लिए और लैंग्वेज के फोर्स एंड इफ़ेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए, जिससे उसका मीनिंग और लूसिडली एंड क्लियरली कम्युनिकेट हो सके, जिसके लिए पोइट्स अलंकारों का यूज़ करते हैं। क्योंकि जब हम लैंग्वेज की ब्यूटी को इंक्रीज़ करके अलंकारों का यूज़ करते हैं तो इससे रीडर्स को और भी ज़्यादा एस्थेटिक सेटिस्फेक्शन मिलता है। एंड नाउ वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच आर सिमली, एपिक एंड होमरिक सिमली, मेटाफर, personification, pathetic fallacy, apostrophe, hyperbole, metonymy, synecdoche, oxymoron, and antithesis, onomatopoeia, alliteration, and transfer epithet. And we have three more figures of speech, so I will discuss one by one. And first one is simile. So the word simile comes from the Latin word similis, like. It means like. A simile is an expression
between different objects or events. It consists in placing two different things side by side and comparing them with regard to same quality common to them. And in other words, there are two essential elements in a simile. First, the two objects or events compared must be different in kind, and secondly, the point of resemblance between the two different objects or events compared must be clearly brought out. Such words of comparison as like, as, and so means सिमिली लैटिन के सिमिलिस जिसका मीनिंग लाइक होता है वहाँ से आया है, जिसका मतलब होता है समानता या समानता। इसको एक्सप्रेस करता है। इसमें दो अलग अलग चीज़ों को, मतलब कि कोई भी चीज़, अब वो कोई भी ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, दो लोग या इवेंट्स या कुछ भी, दो अलग अलग चीज़ों को एक साथ रखकर उनमें किसी भी समान गुण या उनमें जो कुछ भी एक जैसा होगा तो उनका कंपैरिजन किया जाता है। एंड इसमें टू टाइप के कंपैरिजन हो सकते हैं कि या तो जिनके बीच कंपैरिजन हम कर रहे हैं वो दो अलग अलग टाइप के डिफरेंट होनी चाहिए, और या तो उन दोनों के बीच समानता होनी चाहिए। एंड कंपेयर करते टाइम हमेशा लाइक, एज एंड सो इसका यूज़ होना चाहिए। सो वी कैन से हियर सम एग्जाम्पल लाइक एरर्स लाइक स्ट्रोज अपॉन द सरफेस फ्लो। मीन्स यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एरर्स का कंपैरिजन सरफेस फ्लो से किया गया है एंड लाइक का यूज़ है। एंड नेक्स्ट है द यंगर ब्रदर इज़ एज गुड एज गोल्ड। तो यहाँ यंगर ब्रदर यानी कि छोटे भाई को गोल्ड से कंपेयर किया गया है, मतलब कि छोटा भाई सोने जितना अच्छा है, एंड एज का यूज़ हुआ है। क्लियर। एंड नेक्स्ट है हमारा एपिक एंड Homeric simile. So it is so called because it was first used by Homer, the great epic poet of ancient Greece, and ever since it has been made use of by epic poets all over the world. It is also called the long-tailed simile because in it the comparison is not compared to some one quality but a number of qualities are compared, and the comparison is elaborate and spread over a number of lines. Homeric simile imparts variety to the narrative and helps the poets to lengthen it out. Milton in his Paradise Lost and Pope in his mock epic The Rape of the Lock have made abundant use of such Homeric simile. तो इसे एपिक और होमरिक सिमिले इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका यूज़ सबसे पहले होमर ने किया था और तभी से दुनिया भर के एपिक पोइट्स भी इसे यूज़ करने लगे। एंड इसमें किसी एक गुण के बेस पर कंपैरिजन नहीं होता बल्कि कई गुणों का कंपैरिजन करके और कंपैरिजन को एलेबोरेट करके कई लाइंस में फैलाया जाता है जो कि पोइट्स को उसे लेंदी बनाने में मदद करता है। एंड we can say here the example, the broad circumference of the shield of Satan hung on his soldiers like the moon, whole earth through optic glass, the Tuscan artist views, etc. And after that, metaphor. So a metaphor is implied simile. The word metaphor comes from the Greek meta, which means over, pharaoh, carry. It means a carrying over. And by this figure of speech, a word is transferred or carried over.
from the object to which is belong to another in such a manner that a comparison is implied, though not clearly stated. Thus, a metaphor is a compared or implied simile with the word like, as, etc. are omitted. Means मेटाफर एक इम्प्लाइड सिमली है एंड मेटाफर ग्रीक मेटा मीन्स ओवर फेरो से कैरी किया गया है. इसे हिंदी में रूपक अलंकार कहते हैं. क्या? रूपक अलंकार. इस अलंकार में एक वर्ड उस ऑब्जेक्ट के जिससे वो बिलोंग करता है किसी और दूसरे ऑब्जेक्ट में इस प्रकार स्थानांतरित होता है कि कंपैरिजन इम्प्लाइड हो जाता है. और इसमें लाइक एज सो का यूज़ नहीं किया जाता. मतलब कि सिंपल वर्ड्स में बोलें तो दो चीज़ का कंपैरिजन करते वक्त उनको एक दूसरे के समान या किसी एक को दूसरे के जैसा ही ना बताकर एक चीज़ को दूसरा ही बोल दिया जाता है. इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं और क्लियर हो जाएगी चीज़ें कि द कैमल इज़ द शेप ऑफ द डेजर्ट. तो यहाँ कहा गया है कि ऊँट रेगिस्तान का जहाज़ है. यहाँ ऊँट को जहाज़ जैसा ना बोलकर जहाज़ ही बोल दिया गया है. जैसे कि सिमले में बोला गया था ना कि छोटा बेटा सोने जैसा अच्छा है, बट यहाँ बोला जा रहा है कि ऊँट रेगिस्तान का जहाज़ ही है. एंड नेक्स्ट है हमारा ही इज़ द पिलर ऑफ द स्टेट. मतलब वह राज्य का स्तंभ है. तो यहाँ भी राज्य का स्तंभ ही बोला गया है. एंड नेक्स्ट है हमारा पर्सोनिफिकेशन. सो personification is really a special kind of metaphor. It is a figure of speech in which inanimate objects and abstract ideas or qualities are spoken of as if they were persons or human beings. तो इसे हिंदी में मानवीकरण या मानवीकरण कहा जाता है. इस अलंकार में इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स एंड अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ और क्वालिटीज़ मीन्स निर्जीव वस्तुओं और अमूर्त विचारों या गुणों की बात की जाती है, जैसे मानो कि वो पर्सन या ह्यूमन बीइंग हैं. एंड हेयर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ पर्सोनिफिकेशन. वी कैन से हियर दैट अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस. मतलब कि अवसर केवल एक ही बार दरवाजे पर दस्तक देता है. तो यहाँ पे दरवाजे पे दस्तक देने के लिए ये जो अवसर है इसको जैसे कि एक पर्सन के रूप में डिफाइन किया गया है. एंड नेक्स्ट है डेथ लेज हिज आइसी हैंड ऑन काइंड्स. मीन्स अपने बर्फीले हाथों को रखती है, मृत्यु राजाओं पर अपने बर्फीले हाथ रखती है. तो यहाँ पे भी डेथ को एज अ ह्यूमन बीइंग बताया गया है. एंड नेक्स्ट है पीस हाथ हर विक्ट्रीज नो लेस रिनोड देन वॉर. मीन्स शांति की अपनी जीत होती है, युद्ध से कम प्रसिद्धि नहीं. तो यहाँ पीस को विक्ट्री से एंड वॉर को रिनोड से एज अ पर्सन शो किया गया है. सो इन ऑल दीज इंस्टेंसेस life and intelligence have been imparted to lifeless objects or abstract ideas. And next one is pathetic fallacy. So pathetic fallacy is a figure of speech in which human emotions are given to lifeless objects and abstract ideas. It is a special kind of personification in which the inanimate, the lifeless and the abstract are made to partake of human emotions. तो इसे हिंदी में दयनीय,
भ्रांति अलंकार कहते हैं, जिसमें ह्यूमन इमोशंस और लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स एंड अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ में एक्सप्रेस किया जाता है। ये एक टाइप का पर्सोनिफिकेशन है जिसमें इनएनिमेट, लाइफलेस एंड अब्स्ट्रैक्ट को ह्यूमन इमोशंस का पार्ट बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल नेचर वेप्ट एट हिज डेथ एंड द फ्लावर्स वर फिल्ड विथ टीयर्स। मीन्स उसकी मृत्यु पर सारा नेचर रो पड़ा और फूल आंसुओं से भर गए। So, it is usual to begin the name of the personified object with a capital letter. And next one is apostrophe. So, it is a figure of speech in which abstract ideas or inanimate objects are addressed as if they were alive. The word literally means a turning aside. For in this figure, a writer turns aside to address a person absent or dead, or as inanimate object or an abstract ideas. It means इस अलंकार में इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स या अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को ऐसे एड्रेस्ड या संबोधित किया जाता है जैसे मानो वो अलाइव हों। इसका लिटरली मीनिंग टर्निंग असाइड मीन्स एक ओर मुड़ना, एक ओर मुड़ना। ये होता है क्योंकि इसमें राइटर्स किसी अब्सेंट और डेड पर्सन या किसी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट और अब्स्ट्रैक्ट आइडिया को एड्रेस करने के लिए एक ओर मुड़ता है। एंड वी कैन से हियर द एग्जाम्पल, O wild west wind, thou breath of autumn's being. And next, O solitude, where are the charms that sagas have seen in thy face? Clear? And next one is hyperbole. So, the word hyperbole, hyper means beyond and bellow means throw. Literally, a throwing beyond means exaggeration. This figure of speech consists in representing things as much greater or smaller than they really are, with the intention of producing a more striking effect than a plain statement can. Means अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार जो कि हाइपरबोल दो वर्ड्स हाइपर एंड बेलो से मिलकर बना होता है, जिसका मतलब हाइपर मीन्स बियॉन्ड यानी कि परे, किसी चीज़ से परे, एंड बेलो का मतलब होता है थ्रो यानी फेंकना, मतलब कि थ्रोइंग बियॉन्ड परे फेंकना, जिसका मीनिंग है हाइपरबोल। इसमें किसी चीज़ को यानी कि उसकी वास्तविक स्थिति रिप्रेजेंटिंग थिंग्स से कहीं ज़्यादा बढ़ा कर या तो छोटा दिखाया कर बताया जाता है, जिसका इंटेंशन एक प्लेन स्टेटमेंट के कंपैरिजन में ज़्यादा इफ़ेक्टिव प्रभाव क्रिएट करना होता है। जैसे कि सिंपल वे में बोलें तो हम लोग अक्सर बोलते हैं ना कि वो आदमी बहुत फेंकता है, बहुत बड़ा चढ़ा कर बोलता है, या कहते हैं ना कि इतनी बड़ी बात हो गई और ऐसे बोल रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो इस टाइप वाले जो होती हैं बातें, उनको हाइपरबोल स्टेटमेंट में रखा जाता है। और एग्ज़ाम्पल के लिए देखें तो here is the smell of blood still, all perfumes of Arabia will not sweeten this little hand. Next one is metonymy.
So the word metonymy, Greek meta means after and onoma means a name, means literally substitution of name, and the figure consists in substituting the thing named for the thing meant. For example, gray hair may be used for the old age, throne for monarchy. So इसे हिंदी में लक्षणालंकार कहते हैं, लक्षणालंकार, जो कि ग्रीक वर्ड मेटा से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है सब्स्टिट्यूटिंग ऑफ नेम, मीन्स नाम का प्रतिस्थापन, नाम का प्रतिस्थापन। और ये अलंकार थिंग मीन यानी अर्थ की चीज़ को जगह पर नामित चीज़ का प्रतिस्थापन है। मतलब कि सफ़ेद बाल बुढ़ापे के लिए और सिंहासन यानी थ्रोन राजतंत्र यानी मोनार्की के लिए यूज़ हो सकता है। And we can share some more example. So the pen is author is mightier than the sword the soldier। मतलब कि यहाँ पे पेन को ऑथर के लिए एंड स्वॉर्ड यानी तलवार को सोल्जर के लिए यूज़ किया गया है। एंड स्केप्टर एंड क्रॉन मस्ट टम्बल डाउन एंड in the dust we equal made with the poor crooked skiddy and spade। राजदंड और मुकुट गिर पड़ेंगे और धूल में समान रूप से मिल जाएंगे, बेचारे टेढ़े दरांती और कुदार के समान। वी कैन से यहाँ पे स्पेड को क्रोन से एंड धूल के समान यानी कि डस्ट के समान माना गया है पुअर क्रोड को। सो नेक्स्ट वन इज सिनोक्टिक। सो दिस फिगर ऑफ स्पीच इज रियली अ स्पेशल फॉर्म ऑफ मेटोनिमी। इट्स नेम सिन विथ एडॉक। सक्सेशन मीन्स लिटरली the understanding of one thing by another। In the figure there is the substitution of a part for the whole or vice versa, or of an abstract noun for a concrete one or vice versa, of an individual for a class or vice versa, or of the name of the material of which a thing is made for the name of the thing itself। means सिनोक्टिक जो कि अलंकार है, ये सच में मेटोनमी का एक स्पेशल फॉर्म है। इसका नाम सिन एडोक सक्सेशन के साथ लिटरली मीनिंग है, जिसका एक चीज़ को दूसरी चीज़ से समझना। इसमें किसी पार्ट को होल के जगह पर या वाइस वर्स या किसी अब्स्ट्रैक्ट नाउन को ठोस के जगह पर या वाइस वर्स किसी इंडिविजुअल क्लास की जगह पर या इसके ऑपोजिट या जिस मटेरियल से चीज़ बनी है उसके नाम को चीज़ के नाम के जगह पर रिप्लेस किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, द रैंक एंड फाइल स्ट्रीम्ड out of the city to see the sight। means आम लोग उस दृश्य को देखने के लिए शहर से बाहर निकल पड़े। एंड नेक्स्ट, देयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ द टाइगर एंड द एप इन हिज कैरेक्टर। उनके चरित्र में बाघ और वानर का मिश्रण है। एंड नेक्स्ट, कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं। एंड नेक्स्ट है, ही गेव द बेगर ऑफ अ फ्यू कॉपर्स। उन्होंने भिखारी को कुछ सिक्के दिए। एंड नेक्स्ट है,
oxymoron. An oxymoron is the association or blending together of two words or phrases having opposite meanings. तो ऑक्सीमोरन टू ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स या फ्रेजेस का मेल या संयोजन है. फॉर एग्जाम्पल, जेम्स, आई हैव द वाइजेस्ट फूल इन क्रिस्टम मीन्स जेम्स, मैं ईसाई धर्म में सबसे बुद्धिमान मूर्ख था. एंड नेक्स्ट है, दैट टाइम इज पास्ड and all its etching joys and now no more and all its dizzy raptured means वह समय बीत चुका है और उसके सभी कष्टदायक सुख अब नहीं रहे और न ही उसके सभी चक्करदार उल्लास. एंड नेक्स्ट है हमारा एंटीथेसिस. एन एंटीथेसिस anti against thesis placing is a figure of speech in which one word or idea is set against another with the object of heightening the effect of what I said by contrast. So इसका हिंदी मीनिंग है प्रतिपक्ष. मीन्स एंटी अगेंस्ट, थेसिस का प्लेस पर. एंड इसमें एक वर्ड और आइडिया को दूसरे के अगेंस्ट इस वजह से रखा जाता है कि जो कहा जा रहा है उसका उस असर और ज़्यादा बढ़ जाए. फॉर एग्ज़ाम्पल, गॉड मेड द कंट्री बट मैन मेड द टाउन. मतलब कि भगवान ने देश बनाया लेकिन आदमी ने शहर बनाया. नेक्स्ट, यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल. एकजुट होकर हम खड़े हैं, डिवाइड होकर हम गिर जाते हैं. एंड स्पीच इज सिल्वर, साइलेंस इज गोल्ड. सो स्पीच सिल्वर है एंड साइलेंस गोल्ड है. नेक्स्ट वन इज ओनोमेटोपोइया. So onomatopoeia, orioma means name and poia means make, is the use of the word or words whose sound itself conveys the sense of the author. means ऐसे वर्ड या वर्ड्स का यूज़ जिनकी साउंड ही ऑथर के सेंस को कन्वे करती है. फॉर एग्जाम्पल, इट क्रैक्ड एंड ग्राउल्ड एंड roared and howled like noises in a sound. मीन्स यह फटा, गुर्राया, दहाड़ा और चीखा मानो घाव में कोई आवाज़ हो. एंड नेक्स्ट, द मर्मरस हंट ऑफ फ्लाइज ऑन समर एव्स. मीन्स गर्मियों की शाम को मक्खियों का भिनभिनाता हुआ अड्डा. सो वी कैन से हियर कि इस सेंटेंस में पूरी इमेज क्रिएट हो जा रही है कि इसमें लाइक फर्स्ट में आवाज़ एंड मक्खियों का भिनभिनाना, जो इसमें ये कंप्लीट सेंस क्लियर हो रहा है. सो दिस इज़ कॉल्ड ओनोमेटोपोइया. एंड आफ्टर दैट एपिग्राम. सो एपिग्राम, अ ब्रीफ पॉइंटेड सेइंग एक्सप्रेसिंग antithetical ideas or exciting surprise is called epigram. means एक ब्रीफ तीक्ष्ण कथन, मतलब कि कोई तीखी बात जो विरोधाभास विचारों यानी कि एंटीथेटिकल आइडियाज़ या एक्साइटिंग सरप्राइज को एक्सप्रेस करता है, उसे एपिग्राम कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, द चाइल्ड इज़ फादर ऑफ द मैन. मतलब कि बच्चा ही मनुष्य का पिता है. मतलब इससे बताया गया है कि एक जो बच्चा है वही बड़ा होकर फिर एक आदमी या फादर होगा. एंड नेक्स्ट है, आर्ट लाइज इन कंसीलिंग आर्ट. मीन्स कला कला को छिपाने में निहित है.
एंड नेक्स्ट है irony. So it is a figure of speech in which the real meaning is just the opposite of that which is literally conveyed by the language used. तो इस अलंकार में रियल मीनिंग यूज्ड लैंग्वेज के थ्रू लिटरली कन्वे के ठीक ऑपोजिट होता है. फॉर एग्जाम्पल, here under leave of Brutus and the rest, for Brutus is an honorable man. I come to speak in Caesar's funeral. मीन्स यहाँ ब्रूटस और कई लोगों की अनुमति से, क्योंकि ब्रूटस एक सम्मानीय व्यक्ति है, मैं सीजर के अंतिम संस्कार में बोलने आया हूँ. एंड here the use of the word honorable is ironical. Next, pun. So when we use the same word in two or more senses in order to make the people laugh, we employ the figure of speech called pun. Means इसमें हिंदी में इसको श्लेष अलंकार कहते हैं. श्लेष अलंकार मतलब कि जब हम लोगों को हंसाने के लिए एक ही वर्ड का दो या दो से ज़्यादा मीनिंग में यूज़ करते हैं तो हम श्लेष अलंकार यानी पन का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एन एम्बेसडर इज़ अ जेंटलमैन हु लाइज अब्रॉड फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री. मीन्स राजदूत एक सज्जन व्यक्ति होता है जो अपने देश की भलाई के लिए विदेश में झूठ बोलता है. एंड हियर देयर इज अ पन ऑन द वर्ड लाइज. सो नेक्स्ट वन इज alliteration. So alliteration consists in the repetition of the letters of syllable or the same sound at the beginning of two or more words in a line. In this way language becomes musical. तो इसे हिंदी में अनुप्रास अलंकार बोलते हैं. अनुप्रास अलंकार जिसमें एक लाइन में दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स के शुरू में लेटर्स या सिलेबल या एक ही सेम साउंड का रिपीटेशन शामिल होता है. तो इस तरह लैंग्वेज म्यूज़िकल हो जाती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, हाउ हाई हिज ऑनर होल्ड्स हिज हॉटी हेड. मीन्स न्यायाधीश अपना अभिमानी सिर कितना ऊंचा रखते हैं. एंड नेक्स्ट वन इज The fair breeze blew, the white foam flew, the furrow followed free. Means सुखद हवा चली, सफ़ेद झाग उड़ा, हल खुला चला. एंड नेक्स्ट है हमारा ट्रांसफर्ड एपिथेट. सो इन दिस फिगर ऑफ स्पीच an epithet or qualifying adjective is sometimes transferred from the person to an object or from one word to another. So इसे स्थानांतरित विशेषण कहा जाता है और इस अलंकार में एक एपिथेट यानी विशेषण या क्वालिफाइंग एडजेक्टिव यानी गुणवाचक विशेषण कभी कभी किसी पर्सन से किसी ऑब्जेक्ट में या एक वर्ड से दूसरे अनदर वर्ड में ट्रांसफर्ड हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, द प्लोमैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज वेरी वे. मीन्स हलवाहा थका मादा घर की ओर चल पड़ा. एंड नेक्स्ट है हमारा, ये होगा ही टॉस्ड फ्रॉम side to side on his sleepless bed. Means वह नींद से वंचित बिस्तर पर करवटें बदल रहा था.
So we can say here in first case, weary has been transferred from the plowman to the way. In the second case, sleepless has been transferred from the he to bed. So this is all about the complete figure of speech, and I hope you all would have complete understand these things. So thanks for watching this video. Thank you so much.